Item number 58, CN Annadurai. Thank you, Honorable Speaker, sir. I propose this bill, the Commission for Regulation and Development of Information Technology Industry Bill 2024, to provide for the setting up of a commission to regulate and promote the development of information technology industry in the country, and for the matters connected therewith or incidental thereto. The commission shall consist of a chairperson and 4 other members to be appointed by the union government, having such qualification as may be prescribed. Information technology is the gateway of all future developments, be the education, healthcare, agriculture, sports, biodiversity, safety and security, etc. Tamil Nadu government is taking care to enrich and capacity building information technology each year and spread awareness in e-governance and mobile governance in the state. It will open opportunities for employment generation for scientists, techno experts and other managerial jobs. All socio-economic development, growth and civilizational march will be depend upon direction of information technology based on artificial intelligence. The Commission shall take appropriate steps to set up information technology parks in cities with population of more than 1 million and in cities having potential for development of information technology parks. Information technology industry is one of the fastest growing industries of the country. There is tremendous potential for the further growth of this industry. Therefore, requiring more investment, our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu is making an all-out of efforts for attracting and encouraging more investment in the IT industry in Tamil Nadu. This industry can prove to be a major source of revenue the government. There is huge scope to tap the growth potential of information technology industry. It is also proposed that a national policy on information technology be formulated. This bill will pave the way for socio-economic development of various states of the country, especially the developing states, including the state of Tamil Nadu. I get this opportunity to announce that our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu aims to make the state a $1 trillion economy and a global human capital hub through IT industry. Already, Tamil Nadu government is fostering entrepreneurship related to IT and establishing IT parks in the state. Thank you. Shri Nishikant Dubey. धन्यवाद अध्यक्ष जी। मैं सीएन अन्नादुरई साहब के लाए हुए बिल के ऊपर बोलने के लिए खड़ा हुआ। सर, ये बिल देखने से तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जो उन्होंने बिल में उन्होंने अपनी आशंका जाहिर की है, उस आशंका के मूल में वो नहीं गए। बिल में जो आशंका उन्होंने जाहिर की, जिसके लिए उन्होंने एक रेमेडी दी, जो वो कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में जिस तरह से विकास हो रहा है, जिसमें कोई इंडस्ट्री यदि बढ़ने वाली है तो वो आईटी इंडस्ट्री बढ़ने वाली है। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से पूरे देश को और खासकर इस सदन को बताना चाहता हूं कि जो लीडरशिप होती है किसी पॉलिटिकल पार्टी की, वो 50 साल 100 साल के बारे में सोचती, जो कि आज हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी सोचते हैं और उनके नेतृत्व में देश बढ़ रहा है। 2047 का उनका जो है विकसित भारत का संकल्प जो है वो पूरा हो रहा है। पूरी दुनिया जानती थी कि सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर में आईटी
आगे बढ़ने वाली है। अमेरिका में ब्रेन ड्रेन के कारण आज इस पार्लियामेंट में बड़ी चर्चा होती है कि ब्रेन ड्रेन हो गया, कितने लोग विदेश चले गए, कितने लोग यहां आ गए, कितने बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन पूरी की पूरी सिलिकॉन वैली अमेरिका में वो पूरा भारतीय उसको कंट्रोल करते थे, भारत का पूरा दबदबा था। हम खुश होते थे कि भारत के आईआईटी से पढ़े हुए लोग, हमारे पैसे से पढ़े हुए लोग भारत में सुविधा नहीं मिलने के कारण अमेरिका चले गए और वो वहां बड़ा नाम कर रहे हैं, बड़ी कंपनी बना रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी भारत सरकार ने, तत्कालीन भारत सरकार ने, और बड़ा गुस्सा लगेगा, अपोजिशन पार्टी का नाम लूंगा, लेकिन मैं कह रहा हूं तत्कालीन भारत सरकार में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कभी भी इसके बारे में सोचने का प्रयास नहीं किया। और तो और सभापति महोदय, आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि 96 में WTO में हमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया। इस देश के बहुत बड़े अर्थशास्त्री, उन्होंने देश को बहुत कुछ दिया और उस देश में जो कुछ भी दिया उसके कारण जो देश की समस्या है, आज जो बेरोजगारी नजर आ रही है, आज जो कानून में जो है, राहुल जी यहाँ बैठे हुए हैं, PMLA से लेके डायरेक्ट टैक्स तक हंसते हैं, वो केवल और केवल जो है चिदम्बरम साहब गए WTO में और उन्होंने साइन कर दिया कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान है, IT के सामान है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है, हार्डवेयर है, उसमें 0 ड्यूटी लगेगी। और उसका कारण ये हुआ, उसके कारण क्या हुआ, हमारा पूरा खिलौना का उद्योग खत्म हो गया, पूरी IT की इंडस्ट्री खत्म हो गई, पूरी मोबाइल की इंडस्ट्री खत्म हो गई, और जो भारत एक्सपोर्ट करता था 96 के पहले, वो एक्सपोर्ट पूरा का पूरा बंद हो गया और पूरा का पूरा भारत चाइनीज मार्केट बन गया, चाइनीज मार्केट बन गया। और 96 में उस एग्रीमेंट को साइन करने के कारण आज भी भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से माननीय प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, हमारी सरकार 2024 तक जूझ रही है उस एग्रीमेंट को बाईपास करते हुए हम अपने यहाँ के इंडस्ट्री को, हम अपने यहाँ के ब्रेन को, हमारे यहाँ के टेक्नोलॉजी को, हमारे यहाँ के जो लड़के पढ़े लिखे हैं उनको हम किस तरह से जो है आगे बढ़ा सकते हैं। सकारात्मक नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं आज स्टार्टअप हो, स्टैंड अप हो, नहीं उसका कारण सकारात्मक कैसे होगा सर? रोपा पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो? आज सकारात्मक बोल लो, आप फिर कहीं बोल लेना। हाँ, नहीं तो इसीलिए मैं कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि आज जो है स्टार्टअप के नाते, स्टैंड अप के नाते, PLI स्कीम के नाते, और सबसे बड़ा जो सवाल है STPI के नाते, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया जो बना है, वो छोटे छोटे जगहों पर, क्योंकि जो टैलेंट है, चाहे भारत में खेल का टैलेंट हो, भारत में योग्यता क्षमता का टैलेंट हो, चाहे इस पार्लियामेंट में आने वाले लोगों के क्षमता टैलेंट हो, तो आपको पता है अध्यक्ष महोदय कि हम और आप भी जो है एक छोटे जगह से आकर जो है, आप लोकसभा अध्यक्ष हैं और मैं 4 बार का सांसद हूं यहाँ, और पार्टी इतना मौका देती है, तो जो छोटे जगह के लोग हैं उसके लिए भारत सरकार ने एक बड़ा अच्छा जो है सेटअप किया, STPI। आप समझे, मैंने कहा STPI सेटअप किया। STPI मेरे जैसे देवघर में गोड्डा लोकसभा जो कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है, वहां भी STPI की यूनिट है। मेरे यहाँ बोकारो एक छोटी सी जगह है, वहां भी STPI की यूनिट है। तो आप अब माननीय प्रधानमंत्री जी आ गए हैं तो मैं अगली बार बोलूंगा सर, मैं अगले सत्र में आपको बुलाएंगे। धन्यवाद सर। माननीय सदस्यगण, हम 18वीं लोकसभा के दूसरे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। यह सत्र 22 जुलाई 2024 को प्रारंभ हुआ था। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की थी, जो लगभग 115 घंटे तक चली। दिनांक 23 जुलाई 2024 को माननीय वित्त मंत्री द्वारा सदन में केंद्रीय बजट 2024-25 पेश किया गया। सदन द्वारा